Good afternoon, everyone. So, as I have completed with my part of business studies, only chapter 9 and 10 I have not covered, जो कि तुम लोग को फिर वो सर के वीडियो में मिलेगा, तो go through his videos. Today we'll be resuming with chapter number 4 of entrepreneurship, and we have already done the starting 3 chapters of entrepreneurship. I have shared the videos, you can go through those. अब हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 entrepreneurship का, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है. इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स है. ठीक है, तो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक हम लोग आज शुरू करते हैं. विल बी स्टार्टिंग विथ entrepreneurship. ठीक है, माय नेम इज़ खदीजा अनवर, एज यू ऑल नो, एंड let's begin with the topics. So the first topic today, we will be discussing about the factors which should be considered while selecting a new product or a service. Okay, and any service. So any new product or a service which is getting launched in the market, ठीक है, और any इनोवेटेड प्रोडक्ट, ठीक है, वो जब लॉन्च किया जाता है तो किस सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना है एंटरप्रेन्योरशिप को. विल स्टडी अबाउट दैट. सो द फर्स्ट फैक्टर विच शुड बी कंसिडर्ड इज़ द मार्केट असेसमेंट. ठीक है, तो बिफोर सेलेक्टिंग द प्रोडक्ट सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि मार्केट को स्टडी करना है. ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज़ गोइंग टू एनालाइज द मार्केट कंडीशन, एनालाइज द एनवायरनमेंट ऑफ द मार्केट at regional level, national level and international level before launching any new product. या तुम existing product को भी अगर innovate कर रहे हो तो भी तुमको market condition को study करना है, market condition को analyze करना है. ठीक है, and the market conditions are to be analyzed at national level, regional level and international level. ठीक है, so that you can be aware of the competitors also, and you can be aware of the taste and preference of the customers also, whether they are going to like your product or not. ठीक है, now the second factor is practicality. An entrepreneur is supposed to think in terms of the utility of the product and has considered to introduce in the market. If the product is being introduced in spite of a pre-existing one, if it is a modified version, then it's practically must be taken into account. ठीक है, तो जब तुम अपना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इनोवेट करके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, then you have to consider the practicality of your new product or the product which you are launching in spite of the pre-existing one. You have to consider the taste and preference of the customers के जो तुम लॉन्च कर रहे हो वो कस्टमर्स को पसंद आएगा या नहीं आएगा, तो कितना आएगा, कितना मार्जिन है तुम्हारा प्रॉफिट का, पहले वाला प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ हो रहा है और जो अभी तुम लॉन्च कर रहे हो वो ज़्यादा यूज़ नहीं होगा. ठीक है, तो उस चीज़ को भी into account, they should be taken into account. That thing also should be taken into account. Now the third factor is the cost of production. So after following the upper two factors, after considering the above factors, you also have to look into the cost of production. That is, your cost of production should not exceed your investment. ठीक है, तो तुम्हारा जो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आ रहा है और जो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है वो इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, उससे तुमको लॉस नहीं होना चाहिए. मतलब उतना तुमको प्रॉफिट भी होना चाहिए जितना तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. जो प्रॉफिट शुड नॉट बी लेस देन योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अदरवाइज यू विल बी एट लॉस. Then also you have to consider the competition which is in the market, which is in the environment. तो वो तो तुम consider करोगे ही, because they are your competitors, and strong entrepreneur will consider the competitors, but after considering the competitors also, he will come up with a new idea, and he will also move with a he'll also take a big move. Okay, and और अपना जो उसका जो राइवल्स है उसको भी काउंटर अटैक करेगा बाय सेलिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ लेसर प्राइस. यही एम होता है कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसको
लेसर प्राइस में सेल करो, बट उसका क्वालिटी जो है वो अच्छा होना चाहिए। कॉम्पिटिटर्स को ब्रेक करने का, कॉम्पिटिटर्स को रिस्क में लेके आने का यही एक तरीका है कि तुम अपना क्वालिटी जो है वो प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रखो, एक इमेज बना के रखो प्रोडक्ट का, और उसको लेसर प्राइस में सेल करो। तभी यू कैन फेस द कॉम्पिटिटर्स ब्रेवली। ठीक है, तो दिस इज़ द फोर्थ वन। नाउ विल गो थ्रू द फिफ्थ वन, दैट इज़ अवेलेबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ अवेलेबिलिटी, किस चीज़ का? So an entrepreneur ought to ensure with regard to the adequate availability and continuous supply of the raw materials at present and also in future. The source of supply would be at regional, national or international level, and the availability of the raw materials if to be imported from abroad, so it depends on the season, should be considering. ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वट एवर प्रोडक्ट यू आर लॉन्चिंग, उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स का ज़रूरत पड़ रहा है वो तुम्हारे पास अवेलेबल है कि नहीं, फ्यूचर के लिए भी, प्रेजेंट के लिए भी। क्योंकि बहुत बार बहुत सारा रॉ मटेरियल्स जो है वो इम्पोर्ट होके आता है, तो हो सकता है कि इम्पोर्टेड गुड्स आना बंद हो जाए। तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे पास लॉन्ग टर्म के लिए रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, so this is the main point which should be considered, which affects the cost of production. बहुत बार जहाँ से तुम रॉ मटेरियल्स ले रहे हो वो कंपनी बंद हो जाता है, तो इसीलिए पहले से रखना चाहिए। Now the next one is the technical aspect. A final resolution of the above explained factors, the entrepreneurial now has to move forward one step away in terms of machinery and other equipments and techniques, etc. is required where and what caused this would be available. So therefore the technical aspect prior to establishing an enterprise is also importantly worth considering. Now it is a technical aspect के जो techniques तुम use कर रहे हो वो तुमको किस cost में मिल रहा है, वो तुमको lesser cost में मिलना चाहिए ताकि तुम्हारा cost of production जो है वो बहुत हाई नहीं हो जाए। ठीक है, एंड व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, व्हाट आर द मशीन्स यू आर गोइंग टू यूज़, तुमको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करना है। दीज आर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स विच शुड बी considered. Now the last one is the profit possibility. Now however when we talk about a business, any businessman जो है वो स्मॉल बिजनेस स्पेशली जब हो तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि उसका प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। बट देर आर अदर बिजनेस ऑल्सो जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होता है बिजनेस, वो लोग नो प्रॉफिट नो लॉस के मार्जिन से चलता है कि सोसाइटी को भी फ़ायदा हो। ठीक है, एंड सोसाइटी को भी फ़ायदा हो और वो लोग को भी फ़ायदा हो। तो अ सक्सेसफुल प्रूडेंट एंड एडवेंचरस एंटरप्रेन्योर एंड इज़ नॉट थिंक अबाउट द प्रॉफिट। ओके, द सिक्स्थ लाइन जहाँ पे प्रॉफिट लिखा है वहाँ पे प्रॉफिट होगा, PROFIT, देयर इज़ अ स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, सो जो एडवेंचरस जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो इस टर्म से चलता है, इस स्टेटस से चलता है कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस को ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल स्टडी अबाउट द feasibility study. It is an analysis that takes all the project's relevant factors into the account, including economic, technical, legal and scheduling consideration to ascertain the likelihood of completing the project successfully. So feasibility study वो होता है कि ये सारा एक एंटरप्रेन्योर जो है इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद ये देखता है कि ये सब फैक्टर्स जो है वो कितना एक्यूरेट स्टडी किया है, एंड व्हेन ही विल लॉन्च द प्रोडक्ट कितना फैक्टर्स जो है ये सब फीजिबल है। ठीक है, ओके, सो फीजिबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी। ठीक है, कि ये सब फैक्टर्स जो है कितना एक्यूरेट है और कितना पॉसिबिलिटी है कि वो अप टू द मार्क उसको असर्टन किया है, उसको स्टडी किया है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। व्हाट इज़ अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये हम लोग इन द कमिंग चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारा फैक्टर्स जो है वो कंसिडर किया जाता है बिफोर लॉन्चिंग or before introducing a product or a service. Okay, so that's all for today. We have completed our chapter number 4 जिसमें सिर्फ यही 2 टॉपिक था जो कि था कि factors that is to be considered before
that is to be considered before launching a product or a service, before introducing a product or a service. And the next topic is the feasibility study. So you can go through your book also for feasibility study. तो feasibility study यही होता है कि सब factors को study किया जाता है कि कितना possibility है और कितना accurate है ये सब, ताकि आगे का project भी बनाया जा सके. Okay, so we have done for today. Thank you.